गाइस, नमस्ते सबको। आज मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर सम इंफॉर्मेशंस राइट फ्रॉम basically our experience of taking the flight from Kolkata to YYC Calgary, and then उसके बीच में फिर when we landed in YYC Calgary, what all we had to go through. It's not something very bad, but it's all about the rules and regulations that you have to follow once you travel from one country to another. And then after that, when we started living in Canada, Calgary, what all things that we had to do in terms of like we have Aadhaar card in India, so there is a lot of documents that you need to stay in Canada as someone coming from another country. Not sure about people of Canada who are Canadian citizen, but I'm basically somebody who has traveled from India, so I'll be sharing all those stuff that we have gone through. So yeah, starting from the flight experience, we had a flight from Kolkata to YYC Calgary, which was via two locations. The first was from Kolkata to Delhi, where basically we had to go through the customs, like to cross our own country for another country. So we had a very short flight for that. It was 1 hour 50 minutes or something. Yes, the flight was delayed, but then because it was delayed, when we landed in Delhi, we also got to know that the flight from Delhi, the connecting flight to Munich, we had a layover in Munich later on. So वो flight भी हमारी delay हुई थी, thankfully, or else we thought that we have to run for the flights, because you know when it's new for you, you actually don't know you like where to go. So yeah, luck ने साथ दिया, तो हमारी वो flight भी delay थी. तो हमने वहाँ customs वगैरह सब करके, वो पूछते हैं बेसिकली वाई आर यू ट्रैवलिंग टू दैट कंट्री. ओके, सो आपका पासपोर्ट पे वो स्टैम्प लगता है जहाँ पे आपका वीज़ा बन के आया होता है कनाडा का, या फिर जो भी कंट्री में आप जाओगे. वो तो आई गेस इट्स वेरी कॉमन फॉर एनी अदर कंट्री दैट यू ट्रैवलिंग टू. वहाँ से फिर हम दिल्ली में बैठे रहे. फिर हमारी फ़्लाइट थी. द फ्लाइट वॉज लुफ्थांसा. लुफ्थांसा इज़ आई थिंक वेरी बिग. इट्स लाइक लाइक एयर इंडिया. लुफ्थांसा बहुत ही बड़ी कंपनी है जर्मनी के लिए. आई एम श्योर जैसे ही हम म्यूनिक में लैंड हुए, वी कुड सी एवरी फ्लाइट, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स वर ऑफ लुफ्थांसा, एंड इट वॉज अ टू फ्लोर फ्लाइट. उसको फ्लोर्स ही कहना बेटर होगा. इट वॉज अ 2 floor flight. And the service of Lufthansa was amazing. It was my first time, and definitely both of us, it was our first time traveling in such a huge flight. It was a long flight of 8 hours. The service was good. Everything was good. Yes, it's very tedious to sit steady for so long time, and your body is not used to, a stagnant position. It was quite hectic, but then we got a good layover of 4 to 5 hours in Munich. From Munich, we had the last flight to YYC, which was from Air Canada. Air Canada experience मेरा personally थोड़ा सा गंदा रहा. Air Canada, एक तो जो flight है, it's almost like your domestic flights, but our domestic flights like Indigo, Air India, it's still spacious, right? But Air Canada, I found it was little bit congested. Like the leg space उसकी बहुत कम थी. मुझे काफ़ी तकलीफ हुई personally. Plus it was the last 10-hour long flight, okay? And during landing, I'm not sure, सब पायलट्स की लैंड करने का तरीका है कि थोड़ा डिफरेंट होता है. कोई स्मूथ लैंड कर जाता है, कोई आपको बताता रहता है कि भाई लैंड कर रहे हैं, और उतने में वो आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और पता नहीं क्या इतने देर बैठे रहते हो, तो सिस्टम वो बौखला जाता है ना, भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ. तो लैंड करते वक्त मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी. मतलब जो भी मैंने खाया पिया था वो रिवर्स सिस्टम में आने को तैयार था, ऑलमोस्ट निकल ही जाता, सांस नहीं लिया जाता. आई वॉज कम्प्लीटली लाइक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था. मेरा सर दर्द होने लग गया था. बट ठीक है, और वो ना बीच में से चिड़िया की तरह उड़ने लगे. लाइक व्हाइल इट वॉज लैंडिंग, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक which was weird. बट ठीक है, जब उसने लैंड किया, वो जग भी नहीं था, पता नहीं, लाइक जस्ट बिफोर लैंडिंग देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद नहीं आया. बट द लैंडिंग वाज वेरी सॉफ्ट, very smooth. I didn't feel that jerks, the sudden jerk of the wheels, or when it lands. तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सारे फ्लाइट्स का. सबसे ज़्यादा गंदा रहा एयर कनाडा का.
बिकॉज लेग स्पेस कम वगैरह सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लैंड कर गए एंड देयर आर पीपल स्टैंडिंग देयर, यू नो, यू कैन आस्क देम वेयर टू गो आफ्टर यू लैंड, बिकॉज जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली चीज़ें लोकल टाइप की हैं, डोमेस्टिक टाइप की हैं, बट फॉर यू और पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, the things are not going to be same. You have to follow certain procedures, so they will direct you to the lines or the queue that you need to follow. You will end up following them, and then the first thing that I remember is we had to go to a system. There was a huge queue for that system, and यहाँ पे भगदड़ नहीं मच सकता। जैसे मंदिरों में इंडिया में आपने देखा होगा ना, एकदम ऐसी लाइन बनी रहती कि आपको उसी को फॉलो करना है, आप बीच में से कहीं नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे फ्लाइट एयरपोर्ट में देखा, एंड देन यू हैव टू गो टू अ सिस्टम वेर इन इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो वो डिजिटल रहता है, आप उसको टिक 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 करते हो। अगर 2 हो तो दोनों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा, 3 हो तीनों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। फिर वो आपके इंडिविजुअल फोटो लेंगे, यू विल गेट अ रिसिप्ट, ओके, एंड देन यू टेक दैट रिसिप्ट टू द कैनेडियन ऑफिसर्स, द एयरपोर्ट ऑफिसर्स। देयर विल बी 5 to 6 सिटिंग देयर एंड दे मार्क समथिंग। हमारे रिसिप्ट में उन्होंने ई लिख दिया था, फिर उन्होंने डायरेक्शन बता दिया था कि कहाँ पे बैगेज मिल रहा है हमारा, बिकॉज सो पॉइंट टू बी नोटेड, इंडियन फ्लाइट्स में, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में स्पेशली, क्योंकि मैंने सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही अब तक ट्रैवल करी थी, दे विल टेल यू द बैगेज नंबर, लाइक you will receive your luggage in this baggage number. बट कैनेडा में लैंड करके हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि we were very much skeptical about this fact that where is the baggage? There is no information. We are completely new to the country. We are completely new to the system. How do we know? How do we get the luggage? So out of curiosity, I got to one of the air hostess and I asked him or her, I don't sure कौन था, I asked them कि कहाँ पे मिलेगा baggage, and with a smile they said, I'm so sorry, we don't know about the baggage. You need to ask the airport officials. So ठीक है, हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ की फ़्लाइट में शायद नहीं बताते हैं, तो इनका सिस्टम अलग है थोड़ा। तो जो वो कैनेडियन ऑफिसर है उन्होंने ही डायरेक्ट कर दिया था कि कहाँ पे लगेज मिलता है, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। काफ़ी सारी लगेज, आप समझ रहे हो राइट? अगर इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह नहीं है कि अगर वहाँ पे आप 15-20 मिनट वेट कर रहे हो मिल जाएगा इस उम्मीद से। यहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पेशेंस का खेल है सारा, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फ्लाइट till you get your luggage and then book your cab and go to your destination. तो ये था हमारा टिल बैगेज। अब बैगेज के बाद आता है कस्टम्स का, क्योंकि आप इस देश में आए हो, आपका जो भी वीज़ा है, आप किस परमिट से आए हो, वो सब चेक होगा। हम दोनों ही वर्क परमिट पे आए हुए हैं। तो जो कस्टम्स जो ऑफिसर थी उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया, डिटेल्स वगैरह लिए, एंड देन शी गेव अस अ पेज, ओके, 2 इंडिविजुअल पेजेस जिसमें एकदम वर्क परमिट, वो आपको ओरिजिनल है, ठीक है, वो आपको संभाल के रखना है। वो ही चीज़ आपको यहाँ पे काम करने को परमिट करेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी गुम हो जाए, उन चीज़ों को गुम नहीं करना है। शी विल गिव यू 2 पीस ऑफ पेपर, अ गुड A4 शीट, जिसमें आपका वर्क परमिट लिखा होगा और वो कब एक्सपायर हो रहा है वो भी लिखा रहता है। You have to renew before that day or you have to leave this country right exactly उस डेट के बाद वाला डे, ठीक है। If suppose it is 26th of Feb, for example, you have to leave the country by 27th of Feb. You cannot leave. And if you are not intending to leave the country, then you have to renew your passport beforehand, ताकि आपको यहाँ के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उससे उलझना ना पड़े। तो ये था हमारा कस्टम्स तक का सफ़र, सब कुछ मिल गया। फिर हम लगेज लेके बाहर आ गए एंड नेक्स्ट बारी थी कैब करने की। तो इनिशियली हमारे पास ना कोई ऐप था ना कुछ। आप कितना भी यूट्यूब वीडियो देख लो कि हाउ टू बुक अ कैब इन कैनेडा, फर्स्ट टाइम वेन एवर यू लैंड इन अ न्यू कंट्री, स्पेशली नॉट फॉर अ ट्रिप बट टू स्टे इन दैट कंट्री, थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज ट्रिप का मेंटालिटी अलग रहता है। वहाँ पे आपका सब कुछ प्री बुक्ड रहता है अगर आप पैकेज के साथ आते हो या कुछ भी, देयर आर पीपल हेल्पिंग यू, बट इफ यू आर हियर टू स्टे यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन, एंड इफ यू लकी यू विल गेट एंजल्स बाय योर रोड हु विल बी गाइडिंग यू एंड यू विल समहाउ रीच टू वेयर यू शुड। तो हमें यहाँ पे निकलते ही एयरपोर्ट का कैब मिल गया था, इट वॉज एशियन, ठीक है।
It was not a good experience because गाड़ी बड़ी थी, but his first interaction was, no, I cannot take 4 baggage, it's just 3. I mean, he did not help us to take the luggage, cabin के पीछे रखने को भी उसने help नहीं करी. My husband took it all alone. Those were very heavy trolleys, like 4 trolleys, 2 big and 2 medium. उन्होंने खुद से ही रखा, उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की. And when he placed all 4 of them, because my husband is genius, so he was like little bit, कि जिसे क्या कहेंगे उसको, like खुद के बातों में फंस जाना. So he was like, oh okay, all right. So basically हमें पहली बात तो दुख इस बात का पहुंचा कि भाई तुम देख रहे हो तुम्हारे ही देश का कोई इंसान है. I'm not sure वो हमारे देश का था किसी और देश का था, but एशियन था, हिंदी बोलने वाला बंदा था. He was not good to us. He was very kind of rude. But there was this lady in the airport जो यहीं की थी शायद. She somehow forced the driver to try putting all the 4 luggages in his bag, in his car. I'm so sorry. So वो नहीं होती तो शायद वो बिल्कुल ही एकदम एटीट्यूड दिखा के चला जाता. तो उनके वजह से ये बंदा रुका, इसने हमारी सारी लगेजेस ले ली. उसने कुछ हेल्प नहीं किया एक्सेप्ट टू ड्राइव अस फ्रॉम एयरपोर्ट टू अ लोकेशन. एंड उसमें भी जब पूरा बिल हुआ, ही वॉज एक्सेप्टिंग अस टू गिव हिम द लास्ट $2 वाला टिप. बट yes, because we were not in a very good mood, you didn't behave properly with us, we didn't want to leave that $2 का टिप with you, because हाँ यार $1 भी कीमती है, तो $2 छोड़ना, तो अगर आप बहुत अच्छे होते तो of course we would have left it for you. तो ये था हमारा सारा सफ़र, लाइक फ्रॉम कोलकाता टू एयरबीएनबी. हम पहले के कुछ दिन एयरबीएनबी में रह रहे थे, तो एयरबीएनबी की मैंने अलग से वीडियो करके रखी है कि कैसी थी एयरबीएनबी, वो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो. तो जो मेरे लिस्ट में है फ्लाइट, एयरपोर्ट, चेकआउट, वर्क परमिट वगैरह के साथ, ये था, ये मेरा एक पूरा सेक्टर मैंने कंप्लीट कर दिया. अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ वो ये चीज़ें हैं कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हो तो आपको वर्क परमिट और पासपोर्ट के अलावा भी और क्या क्या चाहिए. स्पेशली हम अल्बर्टा इस सिटी में रह रहे हैं, लाइक कैलगरी अल्बर्टा में, तो इसकी खुद की एक आईडी होती है. यहाँ पे आपको लाइक मेरे हस्बैंड बिकॉज वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो उनके he had a list given by the university that within these many days you have to take this thing so that it's helpful to you. तो एक अल्बर्टा आईडी है, दूसरा आपका अल्बर्टा हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान करके है, AHCIP, वो करवाना पड़ता है. और उससे पहले आपको कराना पड़ता है SIN विच इज़ सोशल इंश्योरेंस नंबर. तो मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी जितना हमें पता है, मुझे पता है कि क्यों करना पड़ता है. एंड फिर उसके बाद आखिर में मैं बताऊंगी कि यहाँ का बस और ट्रेन का कैसी मतलब हाउ इज़ द फैसिलिटी हियर. ओके, तो AHCIP एंड ये बाकी जो फैसिलिटीज़, नॉट फैसिलिटीज़ बट जो ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, इनको जानने के लिए आप मेरे ही चैनल में पार्ट 2 वीडियो को रेफर कर सकते हो. इन पार्ट 2 आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज इन डिटेल्स. सी बाय.